Okay, we are discussing the paper 2 today, paper 2 of A-levels. If you can look at the uh, basic page of the paper, it is P22 मई जून 2021 का ये पेपर है, 1 और 30 minutes इसका टाइम होता है और ये हमें इसमें दो केस स्टडीज वी गेट एंड we need to solve both of the case studies. Case study 1 will be given and a few questions will be asked on that case study, then case study 2 will be given and a few questions will be asked on the case study number 2. Looking at the case study number 1, पहले हमें ये करना है कि हमने case study in detail पढ़ लेनी है सारी, and we can identify the points that we can use as an application because इस paper में we have a lot of application to be done, a lot of application. So we'll read the case study, we'll point out some important points. For example, when he says Karen is a sole trader, so we can underline the sole trader because we can use that sole trader in the future for the purpose of further application writing. Then who operates in a service business, so we can underline the service to from her own home. It's a laundry service, so we can underline the laundry. In this way we can underline a few more things. Similarly, यहाँ पे जो हमें ये data given है, we can underline that and we can use in this data also. We can use this data while answering our question a lot. Okay, इसी तरह यहाँ पे भी data given है, number of hotels. Although this will be used in the calculation part 2, but we can use it in the application when we are doing. क्योंकि मैंने भी बताया थोड़ी देर पहले कि इसमें बहुत ज़्यादा हम एप्लीकेशन को यूज़ करते हैं इस पेपर के अंदर. अच्छा जी, from one case study 30 marks question will be tested. The 30 mark stream is like that: a 2 marks definition, then a 3 marks explanation, then some calculation. That calculation might be of 3 marks or might be of 4 marks, then an 8 marks question or 2 marks question on the basis of the assessments. 8 marks question will be based on the 2 factors. So look here. Analyze 2 factors which could affect the scale of HB, and hence we have attempted the P1 and we know that in 8 marks question 2 points are enough. So यहाँ पे भी हमने 2 marks का ही attempt करना है. कैसे करना है? We'll look into the mark scheme and we'll go into the details. Explain one appropriate method of recruitment. This is a 2 marks question. Evaluate appropriate promotion method to HB. This is an evaluation question. Evaluate appropriate promotion methods. This question is 3 marks evaluation. We'll discuss it अभी थोड़ी देर में. So yeah, this is the technique by which we attempt this paper. 3 marks evaluation for 11 marks. Okay, similarly, case study 2 will be given to us. We'll read that case study, we'll underline the important points, then we'll move to the questions. Similarly, a 2 marks question, a 3 marks question, a 2 marks calculation, then a 4 marks assessment on the similar calculation. We have calculated the total profit and we will talk about that profit stuff and all that. Why profit margin for the consumer market is higher. We can use this data in here in answering this P part. Then there is an 8 marks question. As we have discussed earlier, in 8 marks we discussed 2 things only. Then we have another 11 marks question that has, I already told you, 3 marks of evaluation and 8 marks of the analysis. तो ये वो पैटर्न है जिसपे हम अपना जो पेपर है उसको अटेम्प्ट कर रहे होते हैं. तो ये भी 30 मार्क्स का इफ यू लुक हियर, और जो पिछली केस स्टडी थी वो भी 30 मार्क्स की थी. तो टोटल 60 मार्क्स का पेपर हमसे असेस होता है. तो ये है बेसिकली पेपर P2 इन फ्रंट ऑफ अस. लेट्स सी द मार्क स्कीम ऑफ दिस पेपर एंड ट्राई टू एनालाइज के वो जो मार्क स्कीम है उसको हम कैसे यूज कर सकते हैं और कैसे हम फर्दर यूजफुल बना सकते हैं अपने आंसर्स को. लेट मी ओपन वन नोट भी, ताकि अगर हमें कुछ लिखना है तो हम उसके ऊपर लिख भी सकें. Okay, ji. Question number 1, very simple, 2 marks question. As we have discussed earlier, define the term service. And we can see an exemplar here, how we define the service. Something customer buys which cannot be touched. That is intangible in nature. So we get full 2 marks.
because there are two elements in the definition and both are being covered. When we talk about the two elements, the examiner says a partial or the vague definition give us 1 mark, a correct definition give us 2 marks. तो उसमें दो elements उसने हमसे require किए. If you look here, अगर हम देखें तो an intangible production process, जब मैं definition बोल रहा था तो मैंने लफ्ज़ बोला भी था, an intangible production process which is offered or paid or for the customers, जो कस्टमर पे करते हैं और जो कस्टमर को ऑफर की जाती है. तो दो हैं इसके अंदर जो हमारे एट्रीब्यूट्स हैं, और मैं हमेशा से ये सिखाता आया हूँ कि हमें डेफिनेशंस के अंदर जो दो एट्रीब्यूट्स होते हैं वो पूरे करते हैं तो तभी हमें कंप्लीट 2 मार्क्स मिलते हैं. तो यहाँ भी देखें, समथिंग दैट अ कस्टमर बायज व्हिच कैन नॉट बी टच्ड, फुल 2 एलिमेंट्स आर देयर. कमिंग टू द एक्सप्लेनेशन, सेकंड क्वेश्चन जो कि 3 मार्क्स का हमसे टेस्ट होता है, एक्सप्लेन द टर्म सोल ट्रेडर. ओके, जब हम सोल ट्रेडर का लफ्ज बोलते हैं तो उसको हमने 3 मार्क के लिए एक्सप्लेन करना है. लुक एट द एग्जाम्पलर हियर. A sole trader is owned one person who has unlimited liability and it does not need to publish financial accounts. If you look here, तो 3 marks attain करने के लिए हमने 3 elements इसमें choose किए. ठीक है. A sole trader owned by one person, one element, who has unlimited liability, second element, and does not need to publish फाइनेंशियल अकाउंट्स, थर्ड एलिमेंट. तो यहाँ पे 3 एलिमेंट हम पूरे करेंगे तो तभी हमें 3 मार्क्स मिल सकेंगे. अगर हम 3 एलिमेंट पूरे नहीं करते, ये हम P2 में बहुत बड़ी गलती कर रहे होते हैं कि हम अपने 3 एलिमेंट्स पूरे नहीं कर रहे होते. तो रिमेंबर दैट इन 3 मार्क्स एक्सप्लेनेशन हमें अपने तीनों पॉइंट्स पूरे करने ही करने हैं. तो हमें 1 1 1 करके मार्क्स लेने. हमें डिफाइन करना है, हमें उसकी एक्सप्लेनेशन देनी है, एक और एक्सप्लेनेशन देनी है काइंड ऑफ, या कोई एट्रीब्यूट उसका लिखना है, तो विल स्कोर फुल 3 मार्क्स आउट ऑफ दैट. तो यहाँ देखें, वी कैन सी द एग्जांपल, अ सोल ट्रेडर ओन्ड बाय वन पर्सन, डेफिनेशन हो गई. हु हैज अनलिमिटेड लायबिलिटी, पहली उसकी एट्रीब्यूट या डिटेल हो गई, और फिर एंड डज नॉट नीड टू पब्लिश फाइनेंशियल अकाउंट दूसरी हो गई. तो ये इस तरह से हम उसको लेके चलते. कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज ऑफ कैलकुलेशन. कैलकुलेशन में हमने कुछ नहीं करना होता, बहुत सिंपल, हम सिर्फ एक करेक्ट आंसर लिख के हम मार्क्स स्कोर करते हैं. रेफर टू फिगर 1.1 इन द कैलकुलेट एचबीस. तो हम करेक्ट आंसर विद और विदाउट वर्किंग लिखते हैं तो हमें फुल 4 मार्क्स मिल जाते हैं. लेकिन आई ऑलवेज रिकमेंड माई स्टूडेंट्स टू राइट द फार्मूला. स्टेप नंबर 1, राइट द फार्मूला. स्टेप नंबर 2, substitute the values in that. Substitute the values in that. Then write the answer. Step number 3, and always write the percentage, units, whatever with that. So it gives a good image to the examiner. Although if you do not have time, the examiner says correct answer with or without correct working is given full 4 marks. So, but still I'll recommend, if you have time, opt this. Then coming to the technical part of the question, that is analyze 2 factors which could affect the scale of HB. Scale matlab size. Okay, this is an 8 marks question, and always ask 2 factors in the 8 marks question. These 8 marks are simple to score, and this is the only paper in which we can score full marks. Remember that. This is divided 1 1 1 1 1 1 1 1. Remember this pattern. 4 4 is equal to 8. Okay. Or this 4 4, what does it mean? Analyze 2 factors. You write first factor, you score 1 mark. You relate that factor with the case study, you score another mark. You analyze that factor, give one analysis of that, you score 3rd mark. You give developed analysis that is related with the context, plus context. You score 4th mark. In this way, you score full 4 marks. And you similarly, you write second factor, you apply it, you do its analysis, and you developed analysis plus context. You score another 4 marks. So 4 plus 4 is equal to 8. Remember that. This is very simple, and you can always score like this. Look at the mark scheme of this question. Shows knowledge of 1 factor, 1 mark. Shows knowledge of 2 factors, 2 marks. ये वाले एक नंबर ये और एक नंबर ये. Shows understanding of 1 factor which could affect the scale of business in context. You do application, this one, you score another mark. You do another application in context, you score another mark. Then you develop the answer,
you score another mark. You write the analysis, you score another mark. You develop the analysis in context. Good analysis, one factor which could affect the scale of in context, you score another marks. And you develop the second factor, you score another marks. So remember that the last 2 marks are most difficult to score. You also develop it and you relate it to the case study too. So ये हमने करना है. तो बहुत सिंपल है, हम अपने दोनों फैक्टर लिखेंगे, दोनों को केस स्टडी से रिलेट करेंगे, हम यहाँ तक 4 नंबर ले लेंगे, फिर हम उनके ऊपर एनालिसिस करेंगे, हमें 2 नंबर और मिल जाएंगे, फिर हम उस एनालिसिस को फर्दर डेवलप करेंगे और केस स्टडी से रिलेट करेंगे, इन कॉन्टेक्स्ट डेवलपमेंट होगी तो वो स्कोर अनदर 2 मार्क्स, इस तरह से 8 मार्क्स इसमें मिल जाएंगे. Coming to the 2 marks question, that is very simple, but remember that in this 2 marks question हमसे एप्लीकेशन टेस्ट होती है, ये 3 मार्क्स का है तब भी एप्लीकेशन टेस्ट होती है. एक्सप्लेन वन अप्रोप्रिएट मेथड ऑफ द रिक्रूटमेंट ऑफ कैरन टू फाइंड द न्यू एम्प्लॉइज. तो इसमें देखो आइडेंटिफाई करने का एक मेथड है और जो दूसरा हमारा मार्क है, सॉरी एक मार्क है और जो दूसरा मार्क है वो एप्लीकेशन करने का. तो हमें क्या करना है, हमें 2 मार्क्स के इस क्वेश्चन में याद रखना है और ये 3 मार्क्स का है तब भी कि हमें एप्लीकेशन के मार्क्स लाजमी तौर पे लेने. वैसे तो ये सारा पेपर ही एप्लीकेशन का, लेकिन बहरहाल इस सवाल में बिल्कुल खास ख्याल रखना है, बिकॉज इफ वी डू नॉट डेवलप द एप्लीकेशन तो वी वॉन्ट बी एबल टू स्कोर फुल मार्क्स. कमिंग टू द 11 मार्क्स क्वेश्चन, इवेल्युएट एप्रोप्रिएट प्रमोशन मेथड. इसमें भी बच्चे हमारा जो मेथड रहेगा वो सेम रहेगा. हम क्या करते हैं इसमें 1 1 1 1 4 मार्क्स, इसी तरह 1 1 1 1 4 मार्क्स और फिर 1 1 1 3 मार्क्स. ये जो पहले वाले 4 नंबर हैं ये एनालिसिस नॉलेज एप्लीकेशन के हैं और ये जो अगले वाले 3 मार्क्स हैं दैट आर मार्क्स फॉर द इवैल्यूएशन. तो ये हमने इसमें करना है. उसी तरह से जैसे कि मैंने सिखाया 1 फॉर नॉलेज, देन 1 फॉर एप्लीकेशन, देन 1 फॉर एनालिसिस, then 1 for contextual, developed, analysis. तो इस तरह हम 4 मार्क्स स्कोर करेंगे. फिर इसी तरह another 1 for knowledge, another application, second वाला भी, और फिर there are 3 evaluative marks 1 1 1 1 for evaluative statement, 1 for evaluative discussion, जो काउंटर आर्गुमेंट हम देते हैं, अभी उसके एग्जांपल भी देखते हैं, and 1 for evaluative final conclusion, evaluative final conclusion. तो इस तरह से look at the mark scheme, evaluate appropriate promotion methods. एक प्रमोशन मेथड के बारे में बताया, 1 नंबर मिल गया. उस प्रमोशन मेथड को इन कॉन्टेक्स्ट लिखा, यानी एप्लीकेशन की, ये जो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, 2रा नंबर मिल गया. उसका एनालिसिस किया, 3रा नंबर मिल गया. और फिर उस एनालिसिस को क्या किया, इन कॉन्टेक्स्ट डेवलप किया, तो 4th नंबर मिल गया. इसी तरह दूसरा प्रमोशन मेथड लिखा, 1 नंबर और मिल गया. उस प्रमोशन मेथड को केस स्टडी के साथ रिलेट किया, 1 नंबर और मिल गया. उसका लिमिटेड एनालिसिस किया, 1 नंबर और मिल गया. और उसका फुल एनालिसिस किया और उसको कॉन्टेक्स्ट से रिलेट कर दिया, तो हमें दूसरे 4 नंबर भी मिल गए. तो ये 4 + 4 दोनों हम जो प्रमोशन मेथड है उनको लिखने के 8 मार्क्स हमने ले लिए. बाकी के 3 मार्क्स बिलोंग्स टू द इवैल्यूएशन. एन इवैल्यूएटिव स्टेटमेंट हमने दी ये वाली, तो हमें 1 नंबर मिल गया. फिर हमने उसके ऊपर आर्गुमेंट डेवलप किया, ये जो मैंने लिखा इवैल्यूएटिव डिस्कशन, हमें 1 नंबर और मिल गया. और फिर जस्टिफाइड इवैल्यूएशन दी, इवैल्यूएटिव फाइनल कंक्लूजन दी, उस पर भी केस स्टडी से रिलेट किया, उसको कॉन्टेक्स्ट में लिखा लाजमी तौर पे, तो 1 नंबर और मिल गया. दिस इज द मोस्ट डिफिकल्ट मार्क टू स्कोर, क्योंकि हमने इवैल्यूएशन भी देनी है, उसको डेवलप भी करना है, उसको जस्टिफाई भी करना है और केस स्टडी से रिलेट भी करना है. तो दिस 8 + दिस 3 ये इक्वल टू 11 मार्क्स हमें इसमें से मिल जाते हैं. तो ये हमारी 11 मार्क्स की मार्क्स स्कीम है इन द P2. इफ वी लुक हियर, हमने एक एग्जांपल भी इसके आपके साथ डिस्कस कर लेते हैं. हमने कहा एक प्रमोशन मेथड पर्सनल सेलिंग है, तो हमने 1 नंबर यहाँ से ले लिया. फिर हमने कहा कैरन कुड विजिट ईच होटल विच डज नॉट हैव, ये हमने कैरन वाला जो है केस स्टडी से लिया, तो एप्लीकेशन हुई, 1 नंबर हमें यहाँ से मिल गया.
फिर हमने कहा दिस शुड अलाउ कैरन टू एक्सप्लेन द एडवांटेजेस ऑफ हर सर्विस, आंसर टू द मैनेजर, हमने उसको एनालिसिस किया उसका पहला, हमें 1 नंबर और मिल गया। फिर हमने उसकी डेवलपमेंट की, हमने कहा दिस माइट मेक द होटल मोर विलिंग टू यूज HB सर्विस, और इस तरह की 1-2 और डेवलपमेंट्स, तो 1 नंबर और मिल गया। तो ये हमने 4 मार्क्स ले लिए पहला जो प्रमोशन मेथड था उसको लिखने का, क्योंकि सवाल ये था कि 2 प्रमोशन मेथड्स लिखें। फिर हमने दूसरा प्रमोशन लिखा मेथड, हमने कहा कि डायरेक्ट मार्केटिंग कर ले, उसका 1 नंबर मिल गया। कैरन कुड सेंड डिटेल्स ऑफ हर सर्विस टू 14 होटल्स, ये 14 होटल्स जो हैं ये एप्लीकेशन है, ये 1 नंबर और मिल गया। और रिलेटिवली लो कॉस्ट मेथड बिकॉज देयर इज 14 होटल्स, 1 नंबर और मिल गया। और फिर बट इट मे सीम दैट ऑल जंक ईमेल्स इग्नोर्ड बाय द होटल्स वगैरह वगैरह, फर्दर उसकी डेवलपमेंट की तो 1 नंबर हमें और मिल गया। तो ये हमने 4 मार्क्स स्कोर कर लिया यहाँ तक। कमिंग टू दी इवैल्यूएशन पार्ट, फिर हमने कहा अपनी हमने रिकमेंडेशन दी सबसे पहले, ये वाली जो हम कहते हैं इवैल्यूएटिव स्टेटमेंट। हमने कहा पर्सनल सेलिंग इज लाइकली टू बी बेटर प्रमोशन मेथड देन ऑल डायरेक्ट मेल्स, ये हमने एक अपनी ओपिनियन दी, उस पर बात की, ठीक है। और उसके ऊपर कहा दिस इज बिकॉज कैरन कैन एक्सप्लेन द USP ऑफ द HB एंड ट्राई टू कन्विंस द होटल टू यूज द सर्विसेज एंड ऑल दैट। तो ये हमने अपनी दी इवैल्यूएटिव स्टेटमेंट दी, ये जो पहली वाली है, और उसके ऊपर हमने रीजन दी लाजमी तौर पे, रीजन इज द पार्ट ऑफ इवैल्यूएशन वी नो। फिर हमने उसका काउंटर आर्गुमेंट दिया, however it depends whether Karen is a good salesperson, if she is not a good sales then it could be waste of the time for her। तो ये हमने क्या कर दिया, काउंटर आर्गुमेंट दे दिया। तो 1 नंबर हमें इसका मिल गया, 1 नंबर इसका मिल गया, और आखिर में फाइनली हम अपना जो पॉइंट ऑफ व्यू है उसको फाइनल प्रेजेंट कर देंगे, तो विल स्कोर अनदर 1 मार्क। तो दिस इज द डिटेल ऑफ द 11 marks question how we attempted in the paper। तो similar scheme will be followed in the second case study, उसमें भी इसी तरह के सवाल आएंगे। ये 2 नंबर की डेफिनेशन आई टोल्ड यू अर्लियर, इसमें 2 एलिमेंट्स पूरे करने। 3 मार्क्स की एक्सप्लेनेशन आई टोल्ड यू, इसमें 3 एलिमेंट्स पूरे करने। ये कैलकुलेशन है कुछ, ठीक है, मैंने आपको बताया कि हमने कैसे करना है, ठीक है। ये हमने कैलकुलेशन की और ये उस पर आ गया उसकी असेसमेंट। याद रखो बड़ी इंपॉर्टेंट बात ये है कि एक्सप्लेन 2 पॉसिबल रीजंस, तो यहाँ पे 2 रीजंस देने के 2 मार्क्स हैं, लेकिन 2 नंबर किसके हैं, एप्लीकेशन के हैं। तो याद रखने कि ये वाला जो क्वेश्चन है ये एप्लीकेशन के लिए जो कैलकुलेशन के ऊपर असेसमेंट होती है बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। इसी तरह एनालाइज 2 वेज ऑफ द 2 एलिमेंट्स ऑफ द ट्रिपल बॉटम लाइन, ये 8 नंबर का सवाल है, ऑलरेडी डिस्कस्ड 1 1 1 1 1 1, इसी तरह से हमने इसको डिवाइड करके लिखना है। और ये 11 मार्क्स का क्वेश्चन है, रेफर टू टेबल टू एनी द रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन, रिकमेंड विच लोकेशन शुड चूज, तो उस तरह से हम लोकेशन चूज करेंगे। और ये देखो एक उसने एग्जांपल यहाँ पे दी है कि अगर आप लोकेशन को चूज करते हैं 1 मार्क, फिर 1 मार्क फॉर एप्लीकेशन, इफ यू कैन सी 1 मार्क 1 मार्क 1 मार्क 1 मार्क, ये 4 हमारे पूरे हो गए। फिर कमिंग टू द सेकंड पॉइंट उसी भी 1 मार्क 1 मार्क 1 1 1 1, ये भी 4 पूरे हो गए। एंड देन वी कैन ऑब्टेन अनदर 3 मार्क्स फ्रॉम द इवैल्यूएशन। तो ये पैटर्न है P2 का, पेपर 2 जो कि हमसे A लेवल्स में टेस्ट होता है, और AS लेवल का ये पेपर 2 है। तो अगर इस पैटर्न को फॉलो करें तो देयर इज नो पॉइंट ऑफ स्कोरिंग लेस मार्क्स इंशाल्लाह।